Okay, fine. So let's start about okay, fine. So very good morning. We have started chapter 9, that is biomolecules. So let me ask you, that is which topic that we have already covered, that is just introduction overview. हम अभी डिटेल में नहीं गए. So which topic that we have covered? Which topic? First one is फर्स्ट हमने क्या कवर किया था बेटा? Amino acids. Amino acids. And we have covered Lipids and carbohydrates. Yes, Carbohydrate. yes, fine. And fourth biomolecule, that is nucleic acid. That आज हम थोड़ा कवर करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड में कितना हमें कवर करना है. So let's start about nucleic acid. Fourth biomolecule, it is nucleic acid. Okay. तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? What are the examples of nucleic acid? तो आप एग्जांपल डीएनए, आरएनए वो सब डाल सकते हो. लेकिन अभी बात करें तो व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? इट इज अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल. ट मैं ट के ऊपर भार दे रही हूँ. सो इट इज अ चेन ऑफ, इट इज अ लिंक ऑफ न्यूक्लियोटाइड ट. ओके. और वो जो है दे आर लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. तो मान लो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, तो हाउ दे लिंक? They link by which bond? They link by which bond? Phosphodiester bond. Yes. Phosphodiester bond. Okay, fine. Now next one, nucleic acid क्या है? What is nucleic acid? So nucleic acid, okay, it is a chain of nucleotide which are linked by phosphodiester bond. It is linked by phosphodiester bond. अब nucleotide क्या है? What is nucleotide? So nucleotide is composed of nucleoside plus phosphate. So here I am saying the word so nucleoside plus inorganic phosphate. तो अगर कोई आपको पूछे कि what is nucleotide, तो what is nucleotide? What is nucleotide? It is made up of nucleoside plus Inorganic phosphate. Yes, nucleotide, it is composed of nucleoside plus that is phosphate. inorganic phosphate. Organic phosphate. Very good beta. Now what is nucleoside? अब हम थोड़ा डिटेल में अंदर जाएंगे. तो what is nucleoside? तो nucleoside is composed of two nitrogen bases. They are called nitrogen bases. Nitrogen ring structure. Ring structure है, उसके अंदर नाइट्रोजन है. तो they are ring structure. तो वो दो तरीके हैं, प्यूरिन एज वेल एज pyrimidine. Two type of nitrogen structure, purine as well as pyrimidine. Now what is purine? अगर हम purine की बात करें तो purine क्या है? It is a double ring structure. Pyrimidine, it is a single ring structure. मतलब आपका स्ट्रक्चर कैसे होगा? It's like that way. It's like double ring structure. और सिंगल है तो आपको ऐसे दिखेगा. It is a single ring structure. मैं आपको स्ट्रक्चर भी शेयर करूंगी. तो प्यूरिन है, pyrimidine. प्यूरिन जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर, pyrimidine जो है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर. अब व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्यूरिन? अगर मैं आपको बोलूं तो एग्जांपल ऑफ प्यूरिन इज A and G, adenine and guanine. Okay, it is adenine and guanine, A and G. They both are double ring structure. Second one is pyrimidine. So pyrimidine कौन सी चीज आएंगे अंदर? थायमिन, साइटोसिन as well as uracil. अब ये जो uracil है, that structure is present in RNA, not in DNA. Instead of T, thymine. Okay, instead of thymine, RNA में क्या मिलेगा आपको? You will find the structure of uracil. You can say that uracil. तो याद रखना कि DNA के अंदर दो, RNA में
इंस्टेड ऑफ थाइमिन यू विल फाइंड यूरेसिल। तो अगर यू जहां पे भी आया तो समझ लेना कि वो स्ट्रक्चर आपका आरएनए है। दूसरा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और जो यूरेसिल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो हम कब से देखते आ रहे हैं कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो दिस इज योर वन स्ट्रैंड, दिस इज योर अनदर स्ट्रैंड। और चार ही लैंग्वेज है, ए टी जी सी, ए टी जी सी। यू तो आरएनए में है तो डीएनए जो है वो चार कोडोन ही समझेगा, ए टी जी सी। तो ऐसे होते हैं ए टी जी सी, लाइक दैट वे, लाइक दैट वे। और सामने दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, ए जो है वो बॉन्ड बनाएगा टी के साथ और जी जो है वो बॉन्ड बनाएगा जी के साथ, सी के साथ। ये आपको याद रखना है। तो प्यूरिन विल मेक पैर विद pyrimidine, ऐसा बोल सकते हो, ए टी के साथ, जी सी के साथ। तो प्यूरिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, pyrimidine के साथ। लेकिन यहाँ पे भी स्पेसिफिक है, ए बॉन्ड बनाएगा टी के साथ, जी बॉन्ड बनाएगा सी के साथ, वाइस वर्सा। और ए और टी का बॉन्ड जो है दैट इज डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और जी और सी का है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब कभी कोई स्पीसीज में जी और सी का रेशियो हाई होता है डीएनए के अंदर तो उसको तोड़ना डिफिकल्ट है। क्यों तोड़ना डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसके पास 2 है। इसीलिए सब में लिविंग ऑर्गेनिज्म जी और सी का कंटेंट ज्यादा होता है। तो लेट रिवाइज वंस, उसके बाद मैं दूसरा भी रिवाइज करवाऊंगी कि न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन बेस एज वेल एज शुगर। अगर डीएनए है तो इट कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज, अगर आरएनए है तो इट कंटेन्स राइबोज। अब डीऑक्सीराइबोज भी बोलेंगे, ये जो है वो पेंटोज शुगर है, पेंटोज मतलब 5 कार्बन। तो उसमें सेकंड कार्बन में यहाँ पे सेकंड नंबर, मान लो ये आपका शुगर है तो यहाँ पे सेकंड कार्बन में OH नहीं है, इट ओनली कंटेन H, डीऑक्सी, डीऑक्सी मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे सिर्फ H है और इसके अंदर आरएनए के अंदर इट कंटेन्स OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है, लैक ऑक्सीजन एटम। तो डीएनए के अंदर शुगर डीऑक्सीराइबोज, आरएनए के अंदर शुगर दैट इज राइबोज। ओके, अगेन आई रिपीट द होल थिंग। Let's talk about nucleic acid. What is nucleic acid? So nucleic acid, it is a chain of nucleotide. Okay. अब nucleotide जो है, they are linked by which bond? They are linked by phosphodiester bond. Phosphodiester bond. So that is your nucleotide. Nucleotide, it is composed of nucleoside plus phosphate. So nucleoside plus phosphate. न्यूक्लियोसाइड किसका बना है, तो न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन बेसेस एज वेल एज शुगर, 2 चीज। और यू कैन सी दैट दोनों अगर मैं कॉमन नाम दूं तो यहाँ पे इट इज नाइट्रोजन बेसेस, इट इज नाइट्रोजन बेसेस और सेकेंड वन इज दैट इज शुगर। नाइट्रोजन बेसिस में 2 एग्जांपल, प्यूरिन एज वेल एज पेरिडिन। अब प्यूरिन जो है उसमें कौन है, प्यूरिन में कौन है, यस इट इज एडिनोसाइन एंड ग्वानिन, ए एंड टी। और pyrimidine में कौन है, थायमिन, साइटोसिन, बोलो तो पता चलेगा, साइटोसिन, Thymine, cytosine, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ओके, अब डीएनए में कौन है और आरएनए में कौन है, आरएनए में RNA, यूरेसिल, यस आरएनए में यूरेसिल और डीएनए में थायमिन, thymine, टी, थायमिन। और बॉन्ड कौन कौन बनाता है, प्यूरिन एंड pyrimidine। तो यहाँ पे ए टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, जी के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब दूसरी चीज
ये जो प्यूरीन है, प्यूरीन का स्ट्रक्चर कैसा है? डबल रिंग। डबल रिंग। प्यूरीन का स्ट्रक्चर कौन सा है? सिंगल रिंग। तो इट इज अबाउट न्यूक्लिक एसिड। अब मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि एग्जैक्टली हाउ दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। मे आई? यस मैम। Yes, ma'am. If you want to take a screenshot, then take a screenshot. अगर हो जाए तो let me know. તો તમે જ ફોટો મોકલશો ને કારણ કે અમને ક્લિયર નથી દેખાતું. Then दिख रहा, wait a minute, मुझे ये फोटो नाउ दिख रहा, चालू क्लास से कैमरा आपको दिख रहा. Wait a minute, I will try to send a photo. Just let me take a photo. Okay. ओके फाइन. सो अगर ये समझ में आया है तो अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी कि हाउ दे आर कनेक्टेड. ये जो डीएनए है वो कैसे बना है. मे आई रब करूं इसको बेटा? हाँ मैम. यस मैम. आई होप यू रिसीव द फोटो. यस मैम. यस. डीएनए के अंदर कौन सी शुगर है? डीएनए के अंदर कौन सी शुगर है बेटा? थायरॉक्स. डी ऑक्सी और राइबोस. आरएनए के अंदर राइबोस. अब ये कैसे कनेक्टेड डीएनए के ऊपर? हाउ दैट न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स दे आर कनेक्टेड. अब देखो मान लो ये मेरा नाइट्रोजन बेस है. आई राइट एडेनाइन. ओके. अब न्यूक्लियोटाइड किसका बना था? न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट. इन दोनों को हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे. याद है? याद है बेटा? न्यूक्लियोसाइड. तो अब मैं जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाली हूँ दैट स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियोटाइड. उसका स्ट्रक्चर तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट. तो यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोसाइड की जगह आई गॉट नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर. मैंने ये डाला है. ओके. नाउ सी दिस इज योर नाइट्रोजन बेस. अब प्यूरिन है. प्यूरिन में ए और जी तो डबल रिंग होगा. तो ये स्ट्रक्चर आपका ऐसे आता है लाइक दैट. एक बार स्ट्रक्चर कर लेना. कीटोन ग्रुप मिलेंगे आपको, नाइट्रोजन बेस मिलेंगे. तो मैं यहाँ पे ए और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे आई राइट सॉरी ये जो है आपकी शुगर है. सॉरी दैट वाज माय मिस्टेक. इट इज शुगर. वी आर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो डीएनए है तो कौन सी शुगर है? डीएनए तो कौन सी शुगर है? शुगर है. तो शुगर के फर्स्ट कार्बन पे याद रखना, फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस. आई राइट ए. नाइट्रोजन बेस कोई भी हो सकता है रैंडमली अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन कौन सी पास करनी है. तो ए और यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट. तो ऐसा स्ट्रक्चर है आपका न्यूक्लियोटाइड का. न्यूक्लियोटाइड शुगर नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट. आई होप इट्स क्लियर. यस मैम. एडेनाइन फिफ्थ कार्बन फॉस्फेट. अब देखो और मैं एक दूसरा नॉर्मल अगेन शुगर randomly if I'm taking C और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट. अगेन शुगर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे G और यहाँ पे फॉस्फेट. सी एक एक न्यूक्लियोटाइड. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन.
तो थर्ड कार्बन, ये जो है थर्ड कार्बन, इट लिंक विथ फॉस्फेट, थर्ड कार्बन इट लिंक विथ फॉस्फेट। आई होप आर यू गेटिंग? यहाँ पे थर्ड नंबर 1 2 3, यहाँ पे 4 और ये फिफ्थ था जिसपे फॉस्फेट था। तो थर्ड नंबर कनेक्ट करेगा और इस बॉन्ड को बोलेंगे वी कॉल इट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इट्स क्लियर? Yes. अब ये जो है ये सिंगल स्ट्रैंड है, हमारा डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है। अब यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी सामने डबल स्ट्रैंड, शुगर फॉस्फेट। अब देखो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे कौन आएगा सामने? मैंने आपको बताया कि कौन कौन बॉन्ड बनाते हैं। ए है तो सामने कौन आएगा? जी। जी जी या टी? ए और जी तो उसके टाइप है। बॉन्ड कैसे बनाएगा? मैंने यहाँ टी आएगा। ए किसके साथ? T. के साथ। यस, ए टी के साथ। तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे सामने आएगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड शुगर फॉस्फेट। अब सी है तो सामने कौन आएगा? जी जी वेरी गुड, सामने आएगा जी। थर्ड शुगर फॉस्फेट। अब जी है तो सामने कौन आएगा? सी C. तो याद रखना, आगे भी इसका फॉस्फोडाइएस्टर यहाँ पे बना देंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो सेम चीज लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अपोजिट। ए है तो टी, जी है तो सी, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखो ए और टी है तो दे विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड, जी और सी है दे विल फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, टी और सी है दे विल फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। तो दैट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगर मैं यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ लाइक दैट, इट्स लाइक दैट वे। तो यहाँ पे ए सी और जी था तो ए सी और जी, तो सामने आएगा टी जी एंड सी। डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा लाइक दैट वे। आई होप समथिंग इज क्लियर। Yes, ma'am. Clear. यस मैम। Yes. आप बेसिक याद रखो है तो कस्से खोजने की जरूरत नहीं पड़े। इट्स क्लियर बेटा? यस मैम। मैम तुम्हें रिपीट करे पाछा? आनो फोटो लेवा से ले लो फोटो, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड जस्ट लेट मी नो। मैम कैन यू रिपीट अगेन? क्या रिपीट करो बेटा? क्या रिपीट करो? मैम वो थर्ड वाला है ना ट्रिपल बॉन्ड, वो मुझे। Whenever E is there, A will make a bond with T. ये आपका मेरा नहीं है, किसी यूनिवर्सल फैक्ट। तो वो डबल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। And whenever G is there, it will form triple bond, complementary. ये A आपका प्यूरिन है, ये आपका पिरिमिडिन है, प्यूरिन है पिरिमिडिन है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को कनेक्ट करेंगे, हमेशा वो सामने आएगा। इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। A है तो T, G है तो C, that is called complementary. वाइस वर्सा, T है तो A, C है तो G, वाइस वर्सा। इसलिए देखो यहाँ पे A है तो सामने T आया, C है तो G आया, और ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए ठीक है, क्लियर? यस मैम क्लियर। ओके, प्यूरिन में कौन कौन? प्यूरिन में कौन? प्यूरिन में कौन आते हैं? T. एन जी। पिरिमिडिन एन T C N U और बॉन्ड अपोजिट बनाते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन बॉन्ड ये दो बनाते हैं। कंफ्यूज मत होना, बॉन्ड ये दो बनाते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन बॉन्ड बनाते हैं। प्यूरिन A and G, पिरिमिडिन T C और U। और whenever there is an RNA, so instead of T, it will make a bond with uracil. Whenever there is RNA, T की जगह U आ जाएगा in RNA।
That is clear. Now it's clear, beta Tanvi. Now it's clear, beta. Yes, yes. किसको डाउट है? No. Sure. Yes, ma'am. Okay. Fine. अब मैं थोड़ा आपको शेयर करूंगी पीपीटी, थोड़ा कुछ कंटेन दैट आई विल शेयर. ओके. और स्ट्रक्चर है तो आपको कैसे उसको याद रखना है वो हम देखेंगे. My voice is audible? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैमरा मेरा कुछ वो हो गया है, स्टक जैसा कुछ. Just wait a minute. क्या दिख रहा है आपको? White screen. We are finding a lot of problem, in that sharing and that all. It's not a easy job to teach online. There is an internet issue, there is a voice cracking, there is a so and so. मुझे आपको स्ट्रक्चर बताना है. व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पेरीमिलिन. यस, फाइन. अब आपको दिखेगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पेरीमिलिन. सी, शैल आई स्टार्ट बेटा? दिख रहा है आपको कुछ? क्या दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. ओके. देखो आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन आपको दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. देखो, these are the nitrogen bases and this is the structure of adenine. तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर, तो एग्जैक्टली यू नीड टू ड्रॉ. आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है? दैट इज डबल रिंग स्ट्रक्चर और सी यूरेसिल सिंगल रिंग स्ट्रक्चर. तो कैसे आपको याद रखना है कि एडेनिन जो है यहाँ पे NH2 है और यूरेसिल में कीटोन ग्रुप है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O. ये याद रखना है तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ड्रॉप करने के लिए नहीं पूछेंगे लेकिन MCQ में पूछ सकते हैं.
देखो ये मैडम ने ड्रॉ किया था, सी दैट पिंक कलर दैट इज योर शुगर और ये आपके नाइट्रोजन बेस। देखो सी है तो क्या है, वो पीरिडीन है तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ए है तो डबल रिंग स्ट्रक्चर, और देखो फॉस्फेट फिफ्थ नंबर पे, एंड बाय दैट वे दे मेक लिंक फॉस्फोडाइस्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यस मैम। मैडम ने ड्रॉ किया वैसा ही है। और देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर एडेनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर, एरो मेरा घूम रहा है, एरो दिख रहा है आपको? यस। यस। अब देखो एडेनाइन पे डबल रिंग स्ट्रक्चर NH2 है और जीबी डबल रिंग है, लेकिन यहाँ पे कीटोन ग्रुप है। तो अगर आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि एडेनाइन है या ग्वानिन है, देखो डबल रिंग है तो श्योर हो गए कि प्यूरिन है। अब प्यूरिन में भी ए या जी है, तो देखो यहाँ पे NH2, यहाँ पे कीटोन ग्रुप, तो दैट इज जी। अब बाकी की दो है दे आर इन pyrimidine, तो उसमें भी देखो थाइमिन कीटोन ग्रुप और साइटोसिन NH2। तो देखो ए और टी बॉन्ड बनाएंगे, ए और टी, तो ए में NH2, टी में कीटोन, ऐसे कॉम्प्लीमेंट याद रखो। ग्वानिन में यहाँ पे कीटोन है तो सी में यहाँ पे NH2 है। आई होप कि आपको पता चला कैसे याद रखना। यस मैम। क्या बताया यस मैंने? मैम। यस मैम। एडेनिन में कौन सा, तो एडेनिन में कौन सा ग्रुप है यहाँ पे? NH2. NH2। और ए किसके साथ बॉन्ड बनाता है? टी टी में थाइमिन के साथ टी में कीटोन ग्रुप, यस कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप। यस। और देखो ग्वानिन में कीटोन ग्रुप तो साइटोसिन में NH2 ग्रुप, यस या नो? यस यस। फाइन, तो दैट इज यस। यस दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और मैडम ने ड्रॉ किया था वही सेम चीज आपको बताई है, और आप ये मैडम वाला भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इट इज अबाउट न्यूक्लिक एसिड। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 4 बायोमोलिक्यूल्स, सुपरफिशियल मतलब बेसिक। अब थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे कि हाउ इट मेक अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड ऑल। आपकी बुक में देखना, बुक में भी स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे ATGC के, तो देखना वो। अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। सी डिटेल में कैसे जाएंगे, तो डिटेल में कैसे जाएंगे कि ये जो थे वो मतलब सिंपल थे, सिंपल मॉलिक्यूल से। अब हम कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। देखो यहाँ पे किसको बोलेंगे कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा है, उसको बोलेंगे हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मतलब बड़े साइज में, तो Macromolecule. बड़े. दैट इज प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड। अब प्रोटीन जो है वो प्रोटीन किसका बना है? अमीनो एसिड। यस, अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो हम प्रोटीन के बारे में देखेंगे। व्हाट इज पॉलीसेकेराइड, वो किसका बना है? पॉलीसेकेराइड, पॉली मतलब पॉलीमर, सेकेराइड तो शुगर मोनोमर, उसका बना है। न्यूक्लिक एसिड अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दैट ऑलरेडी वी हैव डन। तो ये चीज हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखेंगे वन बाय वन। तो बायो मैक्रोमोलेक्यूल किसको बोलेंगे कि जिसका वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा है। सॉरी 10,000 डाल्टन, ये वो था मतलब बायो माइक्रो था, ये मैक्रो। 10,000 डाल्टन से ज्यादा है। फिर क्या है वो? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग दैट एसिडिक एसिड, तो उसमें क्या नहीं होंगे, फिल्टर नहीं होंगे, ठीक है, आपको रिटर्न टेप में दिखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यस यू मैम। गेटिंग माय पॉइंट? 1000 डाल्टन यस। ऊपर अब हम देखेंगे 1000 डाल्टन लिखा है, नीचे 10,000 डाल्टन बेसिक लिखा है। सेल किसका बना है वो हम देखेंगे, बेसिक सेल। तो देखो ये वाला, अगर लिपिड की बात, इसमें लिपिड की बात नहीं थी, ठीक है, तो लिपिड की बात करें तो इट इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि उसका वेट 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं है। तो लिपिड को हम स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल में नहीं भेजेंगे, क्योंकि 1000 से भी ऊपर नहीं है, तो वी इंक्लूडिंग दैट इज बायो माइक्रोमोलिक्यूल। ओके, लेकिन वो क्या है, लिपिड इनसॉल्युबल। भले उसका वेट ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या है वो लिपिड इनसॉल्युबल। और देखो सेल मेम्ब्रेन में आपको पाया जाता है ये वाला लिपिड, दैट हेड एंड टेल। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो
ये येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है, येलो कलर बेटा, यस मैम। दे रहा है, ये वाला जो घुमा रहे हैं, दैट इज योर लिपिड। और हमने ये देखा था, दैट इज हेड एंड टेल। याद है कुछ? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। तो यहाँ पे पता नहीं, मुझे कुछ दिक्कत हो रही है लेने में। हाँ आया, दिस इज योर स्ट्रक्चर लिपिड। याद है कुछ? दैट इज हेड, दैट इज टेल। तो ये जो बना है वो लिपिड का बना है। यस मैम। Yes, ma'am. Yes. एंड व्हेन टिश्यू इज ग्राइंडेड, जब आप टिश्यू को ग्राइंड करोगे तब सेल मेम्ब्रेन आपका टूटेगा एंड एवरीथिंग इट इज वो सेल में से बाहर निकलेंगे। ओके, बट ये जो लिपिड है वो इनसॉल्युबल है, वो फिल्टर में नहीं जाएंगे। तो ये याद रखना कि लिपिड जो है उसका वेट छोटा है, मतलब कम है, लेकिन वो एसिड इनसॉल्युबल है। तो ये आपको पूछ सकता है। अब आपका बेसिक जो सेल है, सेल किसका बना है? व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ सेल? तो सेल इज कंपोज्ड ऑफ वाटर 70 to 90%, protein 10 to 15%, carbohydrate 3%, nucleic acid 5 to 7% and iron 1%। तो ये डेटा यू नीड टू रिमेम्बर कि आपका सेल किसका बना है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, न्यूक्लिक एसिड कितना है, आयरन कितना है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, तो हमारे हर एक लिविंग सेल में ये सारी चीज दे आर नेसेसरी। तो रिमेम्बर द डेटा। नाउ नेक्स्ट वन इज, अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज वी हैव इनफ टाइम। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट प्रोटीन। अब प्रोटीन किसका बना है? प्रोटीन अमीनो एसिड। अ चेन ऑफ अमीनो Acid. एसिड। और वो जो चेन है वो चेन किसकी बनी है? Polymer. यस, इट इज पॉलीमर। और देखा पेप्टाइड बॉन्ड, इट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। यस और नो? Yes. Yes. देखो यहाँ पे पूरी चेन अमीनो एसिड A1 मतलब 1 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, 2 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, 3 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, तो ऐसे पूरी चेन। और ये जो बॉन्ड है, दैट बॉन्ड इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ बोर्ड पे। देखो, अब आपने देखा था कि पूरी अमीनो एसिड की ये चेन है और ये बॉन्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बॉन्ड? व्हाट इज द नेम ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। बताओ। Peptide bond. यस, पेप्टाइड बॉन्ड। Peptide bond. पेप्टॉन। कैसे उसका बना है? COOH एक तरफ, NH2 एक तरफ H और यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप। ओके, इफ आई ड्रॉ सेकंड अमीनो एसिड तो यहाँ पे NH2 ड्रॉ करना है। CH2 COOH के साथ में NH2 आपको ड्रॉ करना है। COOH यहाँ पे H, सेकंड टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ग्रुप इज वेरिएबल, नाउ यू नो दैट। ओके, थर्ड वन, इफ आई ड्रॉ NH2 COOH H और यहाँ पे R3। ओके, नाउ हाउ दे मेक अ बॉन्ड? तो ये दो यहाँ पे लाइट कर रही है, दे रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O और कैसे बनाएंगे? CHNH2R1 और इसमें से बचा CO और इसमें से बचा NH क्योंकि H2O गया, तो यहाँ पे CONH, C डबल O यहाँ पे HR2। अब ये भी बॉन्ड बना रहा है तो CONH, यस, COOH HRC। हाउ दे मेक अ बॉन्ड? कुछ पता चला? क्यों मैंने NH2 के सामने COOH डाला? दे रिमूव वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O and make a peptide bond, CONH. It is a peptide bond. It's clear? Yes, ma'am. It's clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes.
ओके फाइन, सो दे आर पेप्टाइड बॉन्ड, ओके दे आर पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड एक जो होगा वो NH2 होगा नाइट्रोजन और एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब कोई भी प्रोटीन है तो प्रोटीन एक साइड NH2 एक साइड COOH। आई होप इट्स क्लियर। Yes, Yes. Yes, ma'am. अच्छे से आया समझ में? यस मैम। यस यस मैम। अभी 1 मिनट बाकी है, Yes, ma'am. फटाफट मैं आपको बता देती हूँ। ओके एंड फिर आपको कनेक्ट नहीं होना है, फिर से फटाफट आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे सी वन साइड कार्बोक्सिल ग्रुप और यहाँ पे देखो NH3 दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे सेम CONH, यहाँ पे R1 R2 R3 R4 a long chain। तो दैट इज अबाउट प्रोटीन। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोटीन, वेयर दे आर यूज्ड, तो मैं फटाफट कर देती हूँ तो हमारा ये खत्म हो जाएगा। फर्स्ट वन इज फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर, सेकेंड वन इज ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, है ना, प्रोटीन है ना, इंटीग्रल प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन, तो वो ट्रांसपोर्ट करेंगे न्यूट्रिएंट को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्ट एज इंट्रासेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस, कोलेजन जो है जो बेस बनाता है वो किसका बना है, प्रोटीन का बना है। नेक्स्ट वन इज व्हाटएवर एंटीबॉडीज व्हिच आर फाउंड इन आवर बॉडी